हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं आपको एक सैटरडे स्पेशल इवनिंग वीडियो लेके आया हूँ और एक नया स्टॉक आपके साथ लेके आया हूँ EFC लिमिटेड, जो कि एक कोवर्किंग स्पेस से रिलेटेड स्टॉक है। तो देखते हैं क्या है ये स्टॉक, कैसा है स्टॉक, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं। EFC, we are not only in shared office space or an organization that offers you to hire office services with incredible facility. It is an idea that wants to feed the ecosystem. Announcements: EFC adds a total of 3.6 lakh square feet to their co-working portfolio in Pune and Noida. Our businesses press release: co-working is a look forward to Mondays with fully equipped office space designed for fresh ideas, productivity, organic networking, and month-to-month flexibility. Turnkey focus on your to-dos while we take care of the rest. We design an office space that's tailored to your requirement of location, term, fit out, and services. Assets renting: with changing times, every organization moving towards a asset-light model. Connect us if you prefer to rent out the same in structured and organized manner. Enterprises offices: EFC is one of the leading enterprise space solution provider in the country with more than 20,000 plus seats under the enterprise solutions category. Social media speaks: facts and figures: 57 centers, 7 cities, 47,000 seats, 2.25 million plus square feet. Our business: EFC Real Estate as a Service Company, EK Design, Sprint, The Coworks, White Hills. तो एक शानदार स्टॉक दिखाई दे रहा है जो कि कोर वर्किंग स्पेस से रिलेटेड एक जो एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में कंपनी काम कर रही है। इसकी काफ़ी डिमांड घूम आ रही है बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में। तो देखते हैं इसके बारे में। की पॉइंट्स: इनकॉर्पोरेटेड 1984, EFC लिमिटेड फॉर्मरली अमानी ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड इन बिजनेस ऑफ लीजिंग ऑफिस स्पेसेस, मैनेज्ड ऑफिस business 62% in financial 2024 versus 63% in financial. The company provides managed office space for rent to startups, small and medium-sized businesses, and large corporations. It manages 2.25 million square feet of assets with 57 sites across 7 cities. The business operates under two brands: EFC, which focus on enterprise solution, and Sprint, which offers co-working space for rent. दिस बिजनेस ऑपरेशन अंडर टू ब्रांड्स। तो ये बिजनेस किसके दो ब्रांड्स के अंडर में ऑपरेट किया जा रहा है। EFC जो कि क्या कहते हैं एंटरप्राइज सॉल्यूशंस रहते हैं, जबकि स्प्रिंट विच ऑफर्स को वर्किंग स्पेस फॉर रेंट। द मैनेजमेंट ऑफिस segment saw a growth of 303% year on year in financial 2024, driven by capacity addition and growth in build seats and realizations. Office interior designing 35% in Q1 2025 versus 4% in financial. शानदार ग्रोथ दी द कंपनी थ्रू इट्स सब्सिडरी वाइट हिल्स मैनेजेस ऑफिस इंटीरियर डिज़ाइन। इसकी एक सब्सिडरी क्या करती है, कंपनी ऑफिस का इंटीरियर डिज़ाइन मैनेज करती है। ऑफिस इंटीरियर एंड फिट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन Q1 फाइनेंशियल इट कंप्लीटेड 1 लाख स्क्वायर फीट प्रोजेक्ट फॉर कोफोर्ज इन जस्ट 26 कोफोर्ज के लिए 1 लाख स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट तैयार किया है कोफोर्ज के लिए 62 डेज में। द कंपनी has secured contracts worth over rupees 75 crore from clients like TCS, Sarda University and Dhumal Industries, with additional contracts worth rupees 100 crore currently under negotiation. The segment revenue grew 7.5 times in financial year 2024, bolstered by merger with White Hills Interior Limited. Furniture businesses 11% in financial year 2024 versus 24% in financial year 2023. The company is involved in the manufacturing and trading of furniture. In February 2020, the company incorporated EK Design Industries as in furniture manufacturing arm. This subsidiary received regulatory approvals to set up a manufacturing facility in Pune. Production trials and slated for August 2020, with commercial products expected to commence by September 2024. It has over 300 unique SKUs ready for launch in the market.
Key metrics: quarter one financial year 2000, average square feet per site 25,000 to 30,000 square feet, to seat ratio 40:1, एवरेज लीज पीरियड 3 ईयर्स, कंपनी 3 इसके एवरेज लीज से पीरियड से देती है। लार्ज एंटरप्राइज लीज पीरियड 3 to 5 ईयर्स, लैंडलॉर्ड लीज पीरियड 5+ ईयर्स। क्लाइंट कौन सा कंपनी के पास? टेक महिंद्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, गोदरेज, कार्ट्रेड, मेटा, यूलू, वेस्को, महिंद्रा फाइनेंस एटसेट्रा, यानी बड़ी बड़ी कंपनी के क्लाइंट्स हैं। Sitting capacity as of Q1 2025, the capacity under development was 47,051 seats and the operational capacity was 42,773 seats. The seat utilization was 91% in Q1 financial year 2025. Capacity expansion in Q1 financial year 2025, it has increased its leasehold area by 3 lakh square feet, headed over फाइनेंशियल Q1 में 2025 के 3 लाख स्क्वायर फीट एरिया एडिट किया है और 7,000 सीट्स क्रिएट किया है, 7 सेंटर क्रॉस 4 एक्जिस्टिंग. इट हैज आल्सो एक्वायर्ड अबाउट 40,000 स्क्वायर फीट ऑफ प्रॉपर्टी इन पुणे फॉर डेवलपिंग एंड लीजिंग आवर अंडर द मैनेज्ड ऑफिस बिजनेस मॉडल. यानी कंपनी काफ़ी अच्छे रूप से एक्सपेंड कर रही है डिफरेंट सिटीज़ में, विच हैज़ द potential to generate annual revenue of 14.40 crore by financial year 2020. By financial year 2025, the company targets to its capacity of around 65,000 plus seats. काफ़ी शानदार एक्सपेंशन, 65,000 plus seats में एक्सपेंशन. Overall, it aims to more than 4 lakh square feet of leased space across Pune, Noida and Hyderabad, and increasing its सीटिंग कैपेसिटी टू 92,000 सीट्स बाय मार्च 2026. यानी कि अपनी सीट्स की कैपेसिटी को काफ़ी शानदार रूप से बढ़ा रही है और काफ़ी शानदार रूप से बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ लाइक नोएडा, पुणे और हैदराबाद में एक्सपेंड कर रही है. और मार्च 2026 तक कंपनी का टारगेट 92,000 सीट्स को लेके जाने का है. न्यू वेंचर्स: द कंपनी हैज़ वेंचर्ड इनटू मैनेजिंग स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट and sponsoring a category second alternative investment fund by incorporation of EFC REIT Private Limited and SM REIT with a corpus of rupees 499 crore. काफ़ी शानदार वेंचर भी है कंपनी का. एक्विजिशन इन जुलाई 2020 सब्सिडरी EFC Limited acquired 51% in Big Boss Ventures Private Limited. Big Boss operates 3,000 plus seats in city of Pune and expanding to NCR region, Ahmedabad and Kolkata. तो कंपनी ने एक्विजिशन भी किया है बिग बॉस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी 3,000 प्लस सीट्स की कैपेसिटी है पुणे, एनसीआर रीजन और अहमदाबाद एंड कोलकाता में. फोकस: द कंपनी इज एंटिसिपेटिंग फ्यूचर ऑफ 50 to 75 करोड़ इन फाइनेंशियल 2000 एंड 250 करोड़ to 300 करोड़ बाई फाइनेंशियल 2026 फ्रॉम द फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन. कंपनी क्या फोकस कर रही है फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन से भी फाइनेंशियल 2026 में 250 से 300 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस रखती है. तो शानदार स्टॉक साबित होता है. मार्केट कैप का मात्र 2,157 करोड़ का है. स्टॉक पे 19.7 अच्छे खासे वैल्यूएशन पे स्टॉक अवेलेबल है. डिविडेंड डील कुछ देती है. ROC 18.7% का, जबकि ROE 23% का. इंडस्ट्री भी 29% है. अपनी इंडस्ट्री भी से भी काफ़ी नीचे के वैल्यूएशन पे अवेलेबल है. 1 ईयर का चार्ट देखा, जैसे कि आप सभी को पता है कि मार्केट पिछले 6 महीनों से नीचे गिरा जा रहा है, तो ये स्टॉक भी अपने 52 का से अच्छा खासा गिर चुका है और अच्छे खासे वैल्यूएशन पे यानी कि बाइंग लेवल पे आ गया है. दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट्स देखा जाए तो कंपनी के सेल्स 177 करोड़ की, नेट प्रॉफिट 40 करोड़ का, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी की सेल्स 172 करोड़ की, नेट प्रॉफिट 21 करोड़. यानी ईयर ऑन ईयर कंपनी के सेल्स में जम देखने को मिला. तो नेट प्रॉफिट लगभग डबल हो गया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 35% का था वो इंक्रीज हो 52% और काफ़ी बेहतरीन कहा जा सकता है. TTM बेसिस कंपनी की सेल 539 करोड़ की है, जबकि नेट प्रॉफिट 21 करोड़ का, जबकि मार्च 2024 में कंपनी की सेल्स 410 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 63 करोड़ का, जबकि मार्च 2024 कंपनी की सेल्स मात्र 103 करोड़ की थी और नेट प्रॉफिट 4 करोड़ का था. यानी ईयर ऑन ईयर मार्च 2023 से TTM बेसिस पर कंपनी से लगभग 5 गुना से अधिक भी बढ़ गई है, जबकि नेट प्रॉफिट जो 4 करोड़ का हुआ तो मल्टीपल रूप से बढ़ा है. जो 4 करोड़ से इंक्रीज जो कि 121% का हो गया है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने बैलेंस करके रखा है 54%, 50 to 50 के अराउंड में चल रहा है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी बेहतरीन कहा जा सकता है. कंपाउंड सेल्स ग्रोथ TTM बेसिस 39% की और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ TTM बेसिस 198% की है, जबकि स्टॉक प्राइस CAGR 1 ईयर में 8% का और जबकि 5 ईयर में 103% है. पिछले 5 सालों में कंपनी ने निवेशकों को मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया है. रिजर्व कंपनी का 469 करोड़ के है, जबकि बोरिंग 742 करोड़ की कंपनी की
अपनी फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड कर रही है, इसलिए कंपनी के पास बोरिंग कुछ ज़्यादा है दिखाई दे, लेकिन एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में काम कर रही कंपनी है जो कि काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। फरवरी को क्वार्टर में प्रोमोटर्स के बाद यहाँ 45.51% की होल्डिंग है, एफ की अच्छी खासी होल्डिंग 4.08% की, जबकि डी की होल्डिंग 4.03% की है, तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग कही जा सकती है। जबकि पब्लिक में चैलेंज के पास काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर 18,587% का 87 का दिखाई दे रहा है। तो एक इंटरेस्टिंग स्टॉक मुझे नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आप इसके फंडामेंटल देख के इसके मेरे निवेश के बारे में सोचते वीडियो केवल एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी 106। थैंक यू, बाय बाय।